بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں انٹروڈکشن کا تو ضرورت نہیں ہے مجھ کو، بالکل کوئی انٹروڈکشن نہیں کراؤں گا کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ رضا مراد صاحب آئے ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں، اور آپ پچھلے میرے خیال میں تقریباً 24 گھنٹوں سے ان کے ٹیزر بھی دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ ہمارے. لیکن ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اینڈ آئی ایم ریئلی ٹچڈ، وہ یہ ہوا کہ مہارانی جی بھی ساتھ آئی ہیں. سو رضا مراد صاحب تو آئے ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ مہارانی جی بھی آئی ہیں. تو لوگ فلمیں دیکھ کے رضا مراد صاحب کی اکثر اوقات خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ذرا بڑا ایسے آتے ہیں اسکرین پہ جیسے پتہ نہیں بندے کھا جائیں گے. لیکن اصل حقیقت یہ ہے جو ابھی انہوں نے مجھے بتائی ہے کہ یہ خود ڈرتے ہیں مہارانی جی سے. ایسے ہی ہے؟ نہیں، دنیا مجھ سے ڈرتی ہے اور میں ان سے ڈرتا ہوں. وہی ہو گیا نا. کتنے خوفزدہ رہتے ہیں ہمارا. ایسا ہے کہ جب گھر پہ میں آتا ہوں تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے، ایگزیجریٹ تو نہیں کر رہے. ہماری بہت اچھی دوستی ہے، ہسبینڈ وائف ہم بعد میں ہیں، پہلے ہم دوست ہیں. میں ان کا ختم شکریہ ہو جاتی ہے جب ہسبینڈ وائف. نہیں، ہم دوست ہم پہلے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بھائی آپ کا پورا فوکس یہاں ہے، یہاں بھی دیکھ لو یار. مانا آپ کو دیکھتے رہتے ہیں. بہت خوبصورت خاتون ہے، لیکن بھائی تھوڑا کچھ توجہ مجھ پر بھی آپ فرمائیں. چلیں مجبوراً اب دیکھنا پڑے گا، کیا کروں. تو میں ان کا بڑا مشکور، ممنون و شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کہا نا کہ ہم دونوں دوست ہیں، کہ انہوں نے اس ناچیز کو دوستی کے قابل سمجھا. بہت بہت شکریہ. ہونا تو وہی ہے جو گھر جا کے ہونا ہے، پھر کیوں اتنا مکھن لگا رہے ہیں. کہ خربوزہ چھری پر گرے، ایک ہی بات. یا چھری خربوزے پہ، کٹنا تو خربوزے کو. اچھا، خوش ہیں آپ پاکستان میں؟ پہلی مرتبہ آئیں گے؟ جی جی ماشاءاللہ بہت خوش ہوں، اور بہت اچھے لوگ ہیں یہاں کے، اور بہت ہی وارم ویلکم کیا گیا ہے، تو بہت اچھا لگا. اچھا، جیسا رضا صاحب نے بتایا تھا، رضا صاحب فرسٹ ٹائم آئے تھے، اس کے بعد یہ سیکنڈ راؤنڈ ہے ان کا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں، آپ چلیے دیکھنے کے لیے. تو بس آپ مجھے گھور ایسے رہے جیسے میں ادھر دیکھ بھی نہیں سکتا. یہ پورا فوکس یار ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ یار؟ میں تو بولا نا آپ کو کہ میں مجبوراً آپ کو بیچ میں مجھے بولنا پڑ رہا ہے. آپ پہلے بتاتے ہیں کہ وہ ساتھ آ رہی ہے تو میں چلا جاتا ہوں. نہیں ایسے نہ کریں، اب دیکھیں مجبوری ہے نا، تھوڑا سا خیال کر. ایک کال لے لوں ساتھ ساتھ، کالر بہت ہے، آپ کے چاہنے والے بہت ہیں. مسز رضا ہے ہمارے ساتھ. جی جی السلام علیکم. ہیلو مسز ظفر، سوری. نہیں، مسز رضا تو یہاں ہے. اب میں غلطی کر گیا. ہو جاتی ہے. جی کیسی ہیں آپ؟ ہیلو وعلیکم سر. سر میرا نام مسز ظفر ہے. جی جی بالکل. جی سر ایک تو میں سب سے پہلے رضا صاحب کو اپنے ملک، اپنے پاکستان میں ویلکم کروں گی. دوسرا یہ کہ آپ کا بھی رانا صاحب شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اتنی اچھی شخصیت کو ہمارے سامنے بات کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. دوسرا یہ کہ میں رضا صاحب سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے کافی عرصے پہلے آپ کا ایک انٹرویو سنا تھا جس میں آپ نے اپنے نام کا بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ کا نام رضا رکھا گیا تھا، جو آپ نے شیئر کیا تھا پبلک کے ساتھ تھا کہ آپ کی والدہ کو بشارت ہوئی تھی. آپ کہتے ایران، آپ کی والدہ شاید گئی تھی. میرے والد کو بشارت ہوئی تھی. اچھا مسز ظفر. جی جی درست فرما رہی ہیں. جی میں نے کافی عرصے پہلے، اور یہ واقعی میرے دماغ میں ابھی تلک ہے کہ آپ نے شیئر کیا تھا. اور جب میں نے آپ کو ابھی دیکھا ٹی وی پہ، میں نے اپنے بچوں کو یہ شیئر کیا، بتایا کہ آپ اگر حکم کریں تو میں اس واقعے کو دہراؤں. جی جی ضرور. ویلکم ویلکم ضرور. مسز ظفر مجھ سے پہلے میری 3 بہنیں تھیں، اور جب بھی میری والدہ امید سے تھیں تو میرے والد نے کہا کہ اس بار ہمارے ہاں لڑکی ہوگی. اور جب چوتھی بار میری والدہ امید سے ہوئی تو میرے والد صاحب کو ایک بشارت ہوئی کہ وہ ایران کے مشہد مقدس گئے ہیں امام رضا کے مدار پر، اور امام رضا ان سے فرماتے ہیں کہ اس بار آپ کے بیٹا پیدا ہونے والا ہے. اور میرے والد صاحب ان سے کہتے ہیں کہ اس بار میرے بیٹا ہوگا تو میں اس کا نام آپ پر رکھوں گا، رضا. اور میری پیدائش سے تقریباً 7 مہینے پہلے میرے والد صاحب نے میری والدہ کو خط لکھا، وہ رامپور میں تھیں، کہ اس بار ہمارے بیٹا ہونے والا ہے، اور ہم نے اس کا نام پہلے ہی رکھ دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، رضا. تو یہ میرے نام کی میں کہوں گا کہ
हिस्ट्री है, तारीख है, और ये सबब है मेरे नाम रजा होने का। आपको पता था? जी बताया था इन्होंने कभी? जी पक्की बात है? जी जी पक्की बात जी। आई होप यू नॉट सपोर्टिंग। नहीं पता। आप अपनी हरकतों से एक कॉल ले लूँ? हाँ जी। नासिर साहब है जी। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम सलाम सर। सर क्या है सर आपका? सर जी अल्लाह के शुक्र। रजा साहब से पूछे या महारानी से पूछे? जी सर, रजा साहब से सर मेरे सबसे पहले तो मैं इनको पाकिस्तान में वेलकम कहूंगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनकी मिसेज को भी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर मुझे सवाल ये करना है कि सर आप पाकिस्तान आपको कैसा लगा, खासतौर से आप जो आए पाकिस्तान, और आपकी जो एक्टिंग जो करते हैं सर, जी। क्या आप इसकी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं सर? आपकी यूँ लगता है कि आप रियल इसकी मतलब एक प्रैक्टिकली तौर पर रियल आप उसकी नासिर परफॉर्मेंस साहब, करते हैं? मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो आपने मेरी हिम्मत अफजाई की है, इज्जत अफजाई की है। मैं नासिर साहब आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं एक तरबियत याफ्ता अदाकार हूं। मैंने डिप्लोमा लिया है एक्टिंग का। हमारे यहाँ एक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, तो सन 69 में मैंने वहाँ दाखिला लिया था और 71 में मैं वहाँ से पास करके आया। तो नासिर साहब, मेरा ये मानना है कि अगर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे लेता है तो वो इस उम्मीद पर लेता है कि जैसा भी किरदार होगा मैं उसे बखूबी निभाऊंगा। और चूंकि मैं मुआवजा लेता हूं किरदार करने का, मैं एक पेशावर अदाकार हूं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपना काम पूरी खुश असलूबी से करूं, मेहनत करूं, और अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूं जितनी भी कर सकता हूं। अल्लाह ताला ने जितनी भी मुझे अदाकाराना सलाहियतों से नवाजा है कि जितनी मैं कोशिश करता हूं, मेहनत करता हूं कि जो उम्मीदें मुझसे बांधी गई हैं उन पर मैं पूरा उतरूं। तो मैं बस यही कोशिश करता हूं अच्छा काम करने की, कन्विंसिंग रोल करने की। और आपने जो इतनी अच्छी बातें मेरे बारे में कही हैं, वाकई ये मेरे लिए जो है एक टॉनिक की तरह है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हिम्मत अफजाई करने। इन पे नजर रखती हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। नहीं? बिल्कुल भी नहीं, उसकी एक वजह है क्या? राणा साहब, उसकी वजह यह है कि जो हीरो की बीवियां होती हैं वो बेचारी बहुत टेंशन में होती हैं क्योंकि लड़कियां जो हैं हीरोज पे तो गिरी पड़ी रहती हैं। हम विलन के वो नसीब नहीं है। लड़की बात भी करेगी तो 20 फीट दूर से करेगी, और हम मुस्कुराएंगे तो और ठिठकेगी, और अगर हम दोस्ती करना चाहेंगे, दोस्ताना हाथ बढ़ाना चाहेंगे तो वो उतना ही पीछे हटेगी। तो हमारी बीवियों को इस बात की तस्कीन है, इस बात की तसल्ली है कि ये अगर कोशिश भी करेंगे तो कोई भी लड़की, कोई भी शरीफ खातून, कोई भी अच्छे खानदान की लड़की जो है इन पे घास डालने वाली नहीं है। तो ये He's just making it up. He's just making it up. ये सिर्फ आपको तसल्ली दे रहे हैं और कुछ नहीं कर। नहीं, मैं समझा था कि पाकिस्तान में मेरे सारे दोस्त हैं। ये अनचाहा, ये अनदेखा दुश्मन कहां से पैदा हो जाएगा? हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो? आप अगर जिसके दोस्त हो जाएं तो उस बेचारे को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तो सच्ची बात बता रहा हूँ महारानी जी को, जी। बता रहा हूँ, दोस्ताना तौर पे बता रहा हूँ, एज अ फ्रेंड उन्हें बता रहा हूँ। देखिए, जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते जानी। हमारी भी घर में एक अदद भाभी होगी। नहीं है, देखा ना, फंस गए नहीं। एक कॉल ले लूं। जहूर इलाही साहब है जी। जहूर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम इस्लाम। वालेकुम सलाम। राना साहब को अस्सलाम वालेकुम आपको, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। इस्लाम और रजा साहब और उनकी मिसेज को भी बहुत बहुत सलाम। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। जी। मुझे बड़ी ये खुशी महसूस हो रही है। मैं रजा साहब से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। रजा साहब, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और हम आपकी बहुत मूवीज देखी हैं। जी। और जिस तरह आप तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान में, हम चाहते हैं कि बाकी पुराने जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो भी पाकिस्तान में आए। नहीं, आप का जो ये ख्याल है, मैं भी
100% मुतफिक हूँ। ये जो सिलसिला है जिसे इस बार मैं आया हूँ और ये मेरा एक ذاتی दौरा है और जिस तरीके से मेरा आपके मुल्क में खैर मकदम किया गया है, जितनी इज्जत और प्यार से लोग पेश आए हैं, तो ये पैगाम यकीनन मैं दूंगा अपने मुल्क में जाकर। और आपके जो साबिक वजीर आज़म हैं चौधरी शुजात साहब, उनका एक रुक्का मैं अमिताभ बच्चन जी के पास लेकर जा रहा हूं। वो अमिताभ बच्चन साहब को मदऊ करना चाहते हैं और वो मैं तो बिल्कुल एक पोस्टमैन की तरह हूं, तो वो पैगाम उनका मैं उन तक पहुंचाऊंगा। और मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन की वालिदा का ताल्लुक लायलपुर से था, वो लायलपुर की रहने वाली थी और कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। और जब वो 2 साल के थे तो वो पहली बार यहाँ आए थे, तो यकीनन देखिए अगर उनकी वालिदा का ताल्लुक आपके मुल्क से है तो उनके दिल में भी यकीनन एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा और वो भी आना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से आज से पहले शायद कभी किसी ने उन्हें मदऊ नहीं किया होगा और अगर वो कबूल कर लेते हैं दावतनामा, तो ये अल्लाह ने चाहा तो ये कभी ना खत्म होने वाला आमद और रफ्त का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चले, बड़ी अच्छी बात है जी कि अमिताभ साहब ने मेरे ख्याल में शिकवा किया है कि उनको कभी किसी ने बुलाया है। हम लेकर जा रहे हैं ना। अच्छा, तो चौधरी शुजात साहब ने इनिशिएटिव ले लिया। जी। बिल्कुल सही। एक बड़ी पुरानी और बड़ी अच्छी मूवी है आपकी, राम लखन। वो एक क्लिप दिखा दूं आपको? हाँ जरूर, लोग भी देखना चाहेंगे। अच्छा, उसमें यह था कि माधुरी को जब मैं देखता हूँ उस फिल्म में, तो आंखें 4 नहीं होती, आंखें 3 होती हैं। क्यों? क्योंकि एक आंख मेरी पत्थर की है। अच्छा, हाँ, तो आंखें 4 नहीं हुई थी, आंखें 3 तो हुई थी ना। 3। तो मैंने जो पहले कहा था वो ठीक कहा था ना? क्या कहता? समझ गई ना? जी, समझ गई। आपसे तो मैं बाहर निकला, मजबूरन, बजाय इसके कि आप सीन को अप्रिशिएट करें, कुछ मीन मेखें आप मुझ में ज्यादा निकाल रहे हैं। भाई क्या मैंने क्या बिगाड़ा है आपका यार? आप तो मेरे पीछे पड़ गए हो यार, कसम खुदा की यार, क्या बिगाड़ा है मैंने? मैं किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में आया था कि आपको इंटरव्यू करूंगा, आप साथ। देखिए, अच्छा चले, देखिए मेरी बात सुनिए, ये बड़ा अहम सीन था मेरे लिए। अच्छा, जहां अमरीश पुरी मेरा ऑर्डर मान रहे हैं। ये लाइफ में एक आध बार ऐसा होता है कि अमरीश पुरी किसी का ऑर्डर मानता है और अमरीश पुरी किसी को सर कहता है। आप वो चीज अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आप मेकअप की बात कर रहे हैं यार, क्या क्या बात है यार? मैं असल में किसी और फ्रेम ऑफ माइंड से आया था, मुझे नहीं पता था महारानी जी साथ आ रहे। गलती की आप जरा, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मैं इनसे एक कॉल ले लो, ठीक है ना? एक कॉल ले लो। कौन है जी कॉल पे हमारे साथ? साइमा है जी कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो रज़म राज साहब, मैं आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहना चाहूंगी कि आप पाकिस्तान आए हैं और न्यूज़ 1 को थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने हमें मौका दिया कि हम लाइव उनसे बात कर सकें। तो रज़म साहब, लाइक यकीन जानिए, स्क्रीन से हंसने को दिल नहीं चाह रहा है। माई आईज आर टोटली फोकस ऑन यू। आपकी आवाज, आपकी गुफ्तगू, आपकी उर्दू इतनी माशाल्लाह क्लियर है, आपकी पर्सनैलिटी इज लाइक सो गुड। और अभी जो आप कह रहे थे कि जी मैं यहाँ पे आया हूँ और लड़कियां और ये और वो, तो आपको बता दूं जी, आई हैव अ क्रश ऑन यू। और उस क्रश के चक्कर में क्रश पे क्रश हुए चले जा रहे हैं। तो हमारे बहुत से ऐसी और भी बहुत सारी खवातीन हैं यकीनन जो कि ट्राई कर रही होंगी और वो आपकी फैन है। तो वंस अगेन आपको बहुत बहुत खुशामदीद पाकिस्तान में। और ये भी बताइएगा कि आपके कोई प्लान हैं पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स करने के लिए, मूवीज के हवाले से? बिल्कुल, आई एम ओपन टू ऑल द ऑफर्स, ड्रामा हो या वो फिल्म हो। और मैंने तो एक तजवीज रखी है, क्योंकि मैं, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि मैं एक तरबियत याफ्ता अदाकार हूं, मैं एक मेथड एक्टर हूं, तो मैं चाहूंगा कि आपके मुल्क में आकर मैं एक्टिंग की कुछ वर्कशॉप्स लूं यहाँ पर। तो ये मैंने तजवीज रखी है और देखिए, अगर इसे अमली जामा पहनाया जाए तो बहुत अच्छा होगा, एक सिलसिला भी मेरा बंधा रहेगा। और मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इतनी अच्छी इतनी प्यारी प्यारी बातें मेरे बारे में कही।
वाकई आई एम रियली टच्ड एंड आई थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। अच्छा, ये वर्कशॉप्स की जरा बात थोड़ी सी इलेबोरेट करें आप। टेकिंग वर्कशॉप्स, यू नो, गाइडिंग पीपल, उसमें क्या, व्हाट इज इन योर माइंड एग्जैक्टली, क्या करना क्या चाह रहे हैं आप? मैं क्या करना चाह रहा हूँ? नहीं, मैं मकसद देखिए, अब वो एक खातून ने आपको फोन करके अगर कह ही दिया है कि शी हैज अ क्रश ऑन यू, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिफेंसिव पे चला जाऊंगा। आप क्यों रहे हो आप यार? क्यों जल रहे हो आप यार? मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा। हाँ, तो अपनी अपनी किस्मत है, अपना नसीब है, क्यों जल रहे हो? देखा ना, जो आपने कहा था उसको मैंने प्रूफ कर दिया कि आपने गलत कहा था, और वो सामने बैठी हुई है। आप सिर्फ मुझे गलत प्रूफ करने के लिए लगता है बैठे हैं। अच्छा बताइए, क्या करेंगे क्या उसमें वर्कशॉप? देखिए, वर्कशॉप में ये होता है कि मैं कुछ सीन्स लाऊंगा, मैं कुछ मोनोलॉग्स लाऊंगा, मैं कुछ डिक्शन के पीसेस लाऊंगा, मैं कुछ वॉइस एंड स्पीच की एक्सरसाइजेस बताऊंगा। तो देखिए क्या होता है कि जिसमें पोटेंशियल होता है उसका पता चल जाता है। ठीक। तो अगर जो जिसे अदाकारी में इंटरेस्ट है, अगर वो अदाकार बनना चाहते हैं, तो अगर बाकायदगी से अगर हम पहली सीढ़ी से उसकी शुरुआत करें, तो दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, काफी ममालिक में हैं। तो उनका मकसद यही है कि अगर आप में सलाहियत है, अगर आप बासलाहियत हैं और बाकायदगी से अगर आपको तरबियत दी जाए, तो आपको तराशा जा सकता है, आपको निखारा जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जैसे एक हीरा है, अनतराशा हीरा है, कोई भी जौहरी उसे तराश कर एक बड़ी खूबसूरत उसे शक्ल दे सकता है। ठीक। लेकिन अगर आप उसके हाथ में पत्थर रख दें, तो उस पत्थर को तराश के वो हीरा नहीं बना सकता। वेरी ट्रू। इसी तरीके से अगर आप में सलाहियत है, तो उसे निखारा जा सकता है, उसे तराशा जा सकता है, उसे मजीद रोशन किया जा सकता है। ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। सो इट विल, ये वर्कशॉप जो आप इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, इट विल बी ओपन फॉर एवरीवन। एवरीवन, ठीक है। सो यू वांट टू कंडक्ट वर्कशॉप्स ऑल ओवर? या आई वुड लाइक टू, ऑल ओवर पाकिस्तान। ऑल ओवर पाकिस्तान। बड़ा अच्छा, ये आप बहादुरी को याद कर रहे थे, आपके आंखें चार नहीं हुई थी वहां पे, आपने बता दिया। देखिए, मैं जो बात शुरू में कही थी उसी जगह पे आप खुद फंसते जा रहे हैं। लेकिन यही भी राम लखन का ही क्लिप है जहाँ पे आपने आंखें चार करने की कोशिश की थी। यानी आप दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि मैं काना हूँ? मैं अल्लाह बार बार आप नहीं, आप मैं ऐसे मेरी नहीं कहूंगा, मैं ऐसे कानी नहीं, आंख को आप बहुत ज्यादा जो है बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन मैंने जो बात, ठीक है, मैंने जो बात महारानी जी को कही थी शुरू में, साहब मेरी बात सुनिए, आप ओवरलैप मत कीजिए आप। अगर ये महारानी है तो मैं भी अंधों में काना राजा हो सकता हूँ। राम लखन बीच में आ गया राम लखन। हाँ, लखन चलो। हाँ, तो शर्त रख दी ना उसने। देखिए ऐसा है कि जैसे माधुरी ने कहा है कि वो हमसे शादी करने के लिए तैयार है। अब इतना भी आप हमें अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। एक आंख थी तो माधुरी तैयार हो गई, दो आंखें होती तो क्या होता? सब तैयार हो जाती। बस जी, समझ गई ना? जी जी जी। आज आपने मेरी आंखें खोल दी ना आपने। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो मैंने गलती की है, हाँ। हम दोनों को मिला के गलती, हम दोनों को मिला के सबसे बड़ी गलती। इस गलती का एहसास मुझे यहाँ आपको लाकर हो रहा है। मुझसे मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, जाइए आप कुछ शॉपिंग करें। वैसे भी जेब तो खाली आपकी कर ही दूंगे। हाँ, ये मेरा दिमाग खाली कर रहे हैं आप, ये खाली कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, आप ही बैठे, हम दोनों जाते हैं शॉपिंग जी जी, आप सवालों का जवाब देते रहे, हम शॉपिंग कर लेंगे। हाँ, आपकी जरूरत नहीं है, यही बात है ना। हसीनाएं मुझसे सवाल कर सकती हैं। चले एक कॉल ले लूं। नसीर साहब है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी नसीर साहब, नहीं ड्रॉप हो गया। नसीर साहब ने शायद बात करने का इरादा बदल दिया है। कोई डायलॉग तो सुनाए अपनी मर्जी का। फिल्म थी हमसे न टकराना। अच्छा, तो ये मुझे कह रहे हैं, फिल्म का वाकई नाम था। इनडायरेक्टली समझदार को इशारा काफी। तो उसमें एक डायलॉग था कि
धर्मेंद्र साहब को हमने बांधा हुआ है अच्छा और वो बड़े जुनून में हैं, बड़े गुस्से में हैं। कहते हैं कुत्ते एक बार मेरा हाथ खोलकर तो देख। मैं सिर्फ मुस्कुराता हूं। तू मेरा शिकार करेगा? कुत्ते तू शेर का शिकार करेगा? मैं कहता हूं कि माना अजीत सिंह कि तुम शेर हो और हम कुत्ते, लेकिन कभी कभी कुत्तों के भी दिन आते हैं। अच्छा मैं बाद में आता हूँ, कॉल ले लूँ। हाँ। ठीक है, यूसुफ साहब है जी। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। साहब जी कैसे हैं राणा साहब, खैरियत से आप? अल्लाह के शुक्र, आप सुनाइए। मेरी खैरियत भी अल्लाह का पूछ शुक्र लीजिए है, भाई। रजा साहब से बात करने को बड़ा बिल्कुल करें जी, रजा साहब आपके फरमाइए। हुए। रजा साहब मैं वही हूँ जो आपको वहाँ बीच रास्ते में होटल पे मिला था, जो लाहौर से जब इस्लामाबाद जा रहे थे आप। ओह अच्छा 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 अच्छा। जी जी जी, फ्लाइट में। जी जी अच्छा, आप खैरियत से हैं सर? बिल्कुल। आपको कैसा लग रहा हूँ? बड़ी खुशी हुई। थोड़ा डरा हुआ हूँ। पाकिस्तान है। बीवी साथ हैं और एक अनदेखा हेलो? अनजाना दुश्मन बैठा हुआ है। जी फरमाइए। जनाब, जी मैंने आपकी फिल्म जो देखी थी चोरी मेरा काम, जी 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 उसमें आपने इंस्पेक्टर का रोल किया था जी 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 इंस्पेक्टर श्याम और जी वो मुझे आज तक याद है। आपका जी। वो रोल बड़ा ही बेहतरीन रोल था वो। जी जी शुक्रिया बहुत बहुत। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर आप जैसे इंसान यहाँ पे आते हैं तो हमारी इंडस्ट्री को, हमारी एक्टिंग फील्ड को बहुत फायदा होगा। भाई यूसुफ साहब, एक तो आपका नाम बड़ा मुबारक है। हमारे जो अजीम तरीन फनकार हैं दिलीप कुमार साहब, उनका इसमें गिरामी भी शुक्रिया। यूसुफ है। और इससे पहले एक साहब बात करना चाह रहे थे, उनका नाम नसीर था। तो नसीर साहब और यूसुफ साहब हमारे मुल्क के मायानाज फनकार हैं। तो यूसुफ साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और आपने जिस फिल्म का अभी फिलहाल तस्करा किया, चोरी मेरा काम का, वो 40 साल पुरानी फिल्म है और मुझे इस बात की बड़ी मसर्रत है कि आपको मेरा वो किरदार, वो मेरी फिल्म याद है। वरना 40 घंटे में आदमी फिल्म भूल जाता है उसने क्या देखा है। तो वाकई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं आपकी इज्जत अदाई की। एक और कॉल ले लूँ मैं साथ, क्योंकि कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मेरे ख्याल में वक्त बहुत मुख्तसर है मेरे पास और सबको अकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो कॉल ज्यादा ठीक है, वक्त मुख्तसर है, जरा अपनी खैर मनाइए। मैं जरा आपसे बात, आप यकीन माने आप यहीं पर होंगे, हम दोनों शॉपिंग पे होंगे। आप यहीं पर हैं, हम जा रहे हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। कौन जी? बिलाल साहब जी। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम राणा साहब, जी। वाइस साहब जी, कैसे हैं आप? माशाल्लाह बड़े हसीन लोग बिठाए हुए हैं। तो आपने किसकी बात कर रहे हैं आप? रजा मुराद साहब एंड वाइफ। नहीं अच्छा, आपने हसीन लोग कहा, हाँ। आपने उन हसीनों में मुझे भी शामिल किया। किया बिल्कुल हमने। बिल्कुल बिल्कुल। किया। ओह, ये हसीन मैंने लफ्ज पहली बार अपने लिए सुना है। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देख के। और जी। माशाल्लाह पहली दफा आपके बराबर में बहुत हसीन खातून को बैठे हुए देखा है। पहली थैंक यू बार, सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बस पहली मर्तबा। यही कहा ना आपने? बिल्कुल यही कहा ना, मैं भी यही कह रहा हूँ। भाई ऐसा है कि जलने वाले हैं, बैठे हुए हैं। ठीक है भाई। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। जी। पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो हमारा एक जाती दौरा है, हम बता नहीं सकते कि हम कितनी खुशगवार यादों को लेकर अपने मुल्क जाएंगे। और हम इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो दोबारा आपके मुल्क जरूर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। कब आएंगे दोबारा? आप तो चाहते हैं कि मैं आऊं ना? मैं इनडायरेक्टली पूछ रहा था वैसे, आप कब आएंगे? जब आप बुलाएंगे। आपको भेज कौन रहा है? आप कब जा रहे हैं? मैं कब जा रहा हूं? मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा। आप फिक्र नहीं हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। फिक्र नहीं करें यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप ही जाए। मैं जाऊंगा, आप जाए। लेकिन ठाकुर मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें घसीटता हुआ लेकर
ایک اور کال لے لوں سکندر صاحب. جی السلام علیکم سکندر صاحب. وعلیکم السلام رانا صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر جی، آپ سنائیں. سر میں جنگ سے بول رہا ہوں سکندر. جی جی سکندر صاحب. پینٹر ہوں اور بڑی خوشی ہوئی ہے رضا مراد صاحب کو دیکھ کے. بہت بہت شکریہ بھائی سکندر صاحب. اللہ اور پنجتن پاک ان دونوں کو سلامت رکھے، بہت ہماری بہت دعا ہے. بہت بہت شکریہ. اور ہم ان کو بہت ویلکم کرتے ہیں اپنے ملک میں. بہت بہت شکریہ بہت آپ بہت کا. شکریہ. بڑی خوشی ہوئی ہے ان سے مل کر، سامنا ہوا ہے ان سے. جی جی اور رانا صاحب ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ ایک دفعہ موقع دیا ان سے ملاقات کا. آپ ہم کے بے حد شکر گزار ہیں رانا صاحب، اور ان کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سب ان کی مہربانی ہے جی. اور مہارانی جی نے ہمیں سرپرائز دیا ہے اور ان کے ساتھ آئی ہیں. اور رضا مراد صاحب نے آنا تھا اور انہوں نے آخری وقت میں مہارانی جی نے یہ کہا جی کہ میں رانا مبشر کے شو میں جاؤں گی، جس کی وجہ سے مراد صاحب بہت اپسٹ ہیں. یہ مذاق کر رہا ہوں، دس از آن دا لائٹر سائڈ جی، لیکن ویسے ان کی مہربانی ہے ان دونوں کی. انہوں نے وقت نکالا کیونکہ ان کا اسکیجول بہت ٹائٹ تھا اور پھر بھی انہوں نے ٹائم نکالا اور یہاں پہ آئے اور صرف آپ لوگوں کو بات کرنا چاہ رہے تھے. آپ لوگوں سے جتنے ان کے ویورز ہیں ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے. جی بہت بہت شکریہ جی آپ کا. جس طریقے سے آپ میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں، صحیح بات. یہ ٹریلر ہے، فلم میں آپ کو لے کر بنانے والا ہوں. ٹھیک ہے. کب؟ ابھی اس کے بعد. یہ شو تو ختم ہی نہیں ہو رہا. ہاں شو تو ختم ہی نہیں ہو رہا. اصل میں آپ جو ہے نا، آپ نے ابھی ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں. مہارانی جی کو بولا تھا پیسے دیتا ہوں، تم جا کے شاپنگ کر. ہاں کہا تھا تو. ٹھیک ہے. ہاں تو انہوں نے کہا جی ہم دونوں چلتے ہیں. میرا بھی کہا ساتھ. ہاں پیسے تو آپ نے ڈھیلے نہیں کیے. دیکھیے ایسا ہے، سوری، اگر ہور جائے گی تو ساتھ میں لنگور بھی تو ہونا چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہور کی کا محافظ بھی تو ہونا چاہیے. کتنا اچھا ٹائٹل ہوگا، ہور اور لنگور. میں تو بیک آؤٹ کر رہا ہوں. میں تو جا ہی نہیں رہا تھا، آپ خود جا رہے تھے. کوئی کال ہے جی؟ مقصود صاحب. جی جی السلام علیکم مقصود صاحب. جی وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں رانا صاحب آپ کے؟ اللہ کا شکر جی. میں مقصود بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی مقصود صاحب. میں رضا صاحب سے جو ہے بات کرنا چاہ رہا تھا. کریں جی کریں، مہارانی جی سے بھی بات کریں نا، ان سے نہیں بات کر رہے. جی فرمائیے مقصود صاحب. ہاں جی رضا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج شریف ہے سر آپ کے؟ الحمدللہ. سر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم سایہ ممالک سے جی جی. ہمارے پاس کچھ گیسٹ تشریف لا رہے ہیں، اور آپ شاید جانتے نہیں کہ آپ میرے ون آف فیوریٹ ایکٹر ہیں بہت انڈین بہت فلم انڈسٹری شکریہ. کے. بہت. آپ کا ایک ڈرامہ چلا تھا نا ٹی وی پہ، میت میراد ربا. جی جی، اس میں میں نے ایک سکھ کا رول کیا تھا، نام کی بزرگ لڑکی سکھ. تھی اور اس کے فادر کا رول کیا تھا. جی جی تو وہ ہمیں بہت پسند آیا تھا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت اور شکریہ. پچھلے دنوں آپ ہمارے میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں نا، شالامار باغ سے. جی 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 جی. تو جب ہمیں پتا چلا تو ہمیں بڑا دکھ ہوا نا کہ رضا صاحب آئے ہوئے ہیں اور ہمارے مطلب گھر کے پاس سے ہو کے چلے گئے. ہاں میں حاضر ہوا تھا شالیمار باغ، اور کیسا لگا آپ کو سر؟ بہت حسین لگا اور بڑا اچھا اسے مینٹین بھی کیا ہے. تو ایک خواہش تھی شالیمار باغ دیکھنے کی، تو بڑا اچھا لگا. اور پچھلی بار جب وقت کی قلت کی وجہ سے میں یہ تمام تاریخی مقامات نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن اس بار وہ کسر میں نے پوری کر دی اور میں جتنے بھی آپ کے تاریخی مقامات ہیں وہاں میں گیا اور میں بہت لطف اندوز ہوا. اچھا ایک اور آپ کے بہت چاہنے والے آپ کے شو پہ آنے سے پہلے سے مجھے فون کر رہے ہیں. جی جی. اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی میں وہاں پہ وہ ملا نہیں سکے جو ہم نے لائنز یہاں پہ بتائی ہوئی ہیں، لوگوں کو نمبر دیا ہوا، کیونکہ وہاں پہ اتنی لمبی قطار لگی ہوئی ہے. آپ سے بھی لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن مہارانی جی سے بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں کیسے میں نے آرام سے بات کی. یہ بلال صاحب ہیں، بلال پٹیل صاحب. ہاں یہ تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں. ہاں یہ بات کیجیے. بہت ان کی آواز شاید باہر نہ آ سکے، مہربان دوست ہیں. کیا بات ہے بلال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام بلال صاحب. بالکل طبیعت ٹھیک ہے. آپ کیسے ہیں بلال پٹیل صاحب؟ جی 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 جی
जी 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 जी। तो मेरा नंबर तो है आपके पास, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। नहीं, मैं जब आप तो कल अमेरिका तशरीफ ले जा रहे हैं, वहां से मैं इंशाल्लाह 27 की शाम तक पहुंच जाऊंगा इंडिया। तो आप बिल्कुल मुझे कॉल करें, बड़ा अच्छा लगेगा। की शाम तक खुद जा रहे हैं जी। ठीक है पटेल साहब, अल्लाह हाफिज। ये जो आदमी बैठा है पता नहीं कौन है यार, एक काम इसने अच्छा किया है कि आपसे मेरी बात करवा दी। तो मैं तो काफी इनकी फिक्र में हूँ शो के बाद, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि आपसे बात करा दी तो थोड़ी सी रियायत कर दूंगा। नहीं, आप जाए, आप तो जाना है, आपने तो 27 तक जा रहे हैं ना, है ना? महारानी 26 हो जा रही है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता? आप वापस तो नहीं जा रही ना? इनको फोन नंबर मत देना। फोन नंबर की क्या जरूरत है? ढूंढने वाले ढूंढ लिया करते हैं, फोन नंबर की ख्वाबों में ढूंढिए ना। ख्वाबों को छोड़े जी, ऐसी कौन सी बात है? एक यूसुफ कुरैशी साहब की भी कॉल है, वो भी ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम राना साहब, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक जी, आप खैरियत से? मैंने रजा मुराद साहब से एक बात करनी थी। तो टीवी का वॉल्यूम कम करेंगे, फिर रजा साहब भी सुन लेंगे और आप भी बात हो जाएगी आपकी। जी फरमाइए कीजिए। यूसुफ साहब, फरमाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे पाकिस्तान की जो इंडिया की जो फिल्मों के अंदर पाकिस्तान मुखालफत की ये जो मतलब दिखाते हैं इशू, इसको कम करना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया के अवाम का एक ही मसला है, इन दोनों को मिलाना चाहिए, ना कि ये मनफी बातें करके इनको मतलब मुखालफत फैला रहे हैं। जी जी जी। नहीं, ये आपने जो फरमाया है ये बात मैं आपसे मुतफिक हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात खुशगवार होना चाहिए, और ये बात अगर दोनों ममालिक समझें तो बेहतर होगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर मुश्तरका तौर पर इस पहलू पर अगर हम तबादला ख्याल करें, गुफ्तगू करें कि ना आप हमारे खिलाफ कुछ कहें ना हम आपके खिलाफ कुछ कहें, तो ताली तो दोनों हाथों से बचती है। तो मैं यही चाहूंगा कि इस पहलू पे बैठकर इसका हल निकाला जा सकता है। अच्छा, कोई शेर तो सुना दे, कोई शेर सुना, मुझे सुना दे शेर। आप तो गुमसुम हो गए कहीं। नहीं, आपसे बात करूं तबाह परेशान, वहां देखूं तबाह परेशान होते, कहाँ जाऊंगा? मैं आप पे शेर सुनाकर अपना शेर बर्बाद नहीं करना चाहता। चले मेरे पे ना सुनाए, इधर सुना दे, महारानी जी पे सुना। तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखूं क्या तुमसे बात करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जल गए? क्या करूं अब, ऐसे ही है। क्लिप अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आप सीन वो दिखा रहे हैं जहां मेरी एक आंख है और एक टांग है। ये एक जगह आपने मुझे बतौर काना दिखाया है, एक जगह आपने मुझे बतौर लंगड़ा। क्या मेरी कुछ अच्छी फिल्में भी हैं, मैंने कुछ अच्छे काम भी किए। अभी इतने क्लिप्स हैं और ये सब आपकी ख्वाहिश थी कि इस किस्म की क्लिप्स दिखाई जाएं, और मुझे लगता ही है कि आप जान के कुछ सिंपैथी वोट लेना चाह रहे थे, सिंपैथी वोट मिले आपको, लेकिन ऐसा नहीं। कहाँ मिल गया। देखा आपने कितनी अच्छी अच्छी बातें किए हैं पाकिस्तान के बाशिंदों ने मुझसे। वो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है। तो और कहीं से मिला क्या? उम्मीद पे दुनिया जीती है, मिलेगा। अभी शादी, आप उम्मीद पे ही रहे। अब ऐसा है कि शादी के 33 साल हो गए हैं। हाँ, यानी नहीं, क्या आप बताना क्या चाह रहे हैं कि 33 साल हो गए, आपके साथ ऐसा वाकया कभी पेश नहीं आया जो आज हो रहा है? कैसा वाकया? अब ये क्या बोलूं, कैसा वाकया? हम लाइव जा रहे हैं। मालूम है लाइव जा रहे हैं, मालूम है कि लाइव जा रहे हैं। आपको पता है लाइव का हाँ। जो है अपोजिट क्या है? क्या? लाइव का अपोजिट होता है डेड। हाँ, लाइव डेड। सुन लिया आपने? बिल्कुल सुन लिया। तो फिर हम शॉपिंग का क्या होगा हमारी? वो हम कर लेंगे, आप फिक्र नहीं करें। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। कुछ और पीना चाहे जरूर पीजिए, मेरा तो वो इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, फिलहाल तो मैं खून के घूंट पी रहा हूं। अच्छा, यकीन माने शो खत्म करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन ये जो मैसेज आ रहे हैं ना, वो ये आ रहे हैं कि जनाब हमें जो एड जो हमने खा लिए,
جو اشتہارات جو ملے ہوئے ہیں اس 8 سے 9 کے سلاٹ میں وہ سب خالی ہے ہم نے. سو یہاں پہ لاکھوں روپے کا ہو چکا ہے نقصان. جی جی پیسے بھی کوئی نہیں ملے ہمیں شاپنگ کے لیے, وہ بھی مجھے خود ہی کرانی پڑے گی. بالکل. اس کی بھرپائی میں کیسے کر سکتا ہوں بتائیے. کچھ بھی نہیں, آپ آرام کریں, میں تو پھر مزید خرچہ کرنے کے لیے تیار ہوں آپ کی وجہ سے, کیونکہ کمٹمنٹ آپ نے کی کہ آپ پوری نہیں کرتے ہیں. کا تو کچھ کرنا ہی پڑے گا. وہ تو جو آپ کو کرنا ہی کرنا پڑے گا نا, آپ سوچتے رہے. نہیں, آپ ہم کیا تو ہے, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ذرا آپ شو کو پرولونگ کریں تاکہ, لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, باہر تو تم کو نکلنا ہی ہوگا. اچھا ایک بات بتائیں, پاکستان ہندوستان دوستی, اس پہ کچھ سنائے. دیکھیے شو کا وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اس شو کا اختتام ہے وہ دوستی سے ہو, وہ بھائی چارگی سے ہو, وہ دونوں ممالک کے مابین ایک ایسی دوستی کی بنیاد سے ہو جو تا قیامت قائم رہے. تو دونوں ممالک کی میں چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیشہ دوستی قائم رہے, دوستانہ سلامت رہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بنے چاہے دشمن زمانہ ہمارا, سلامت رہے دوستانہ ہمارا, سلامت رہے دوستانہ ہمارا. بنے چاہے دشمن زمانہ ہمارا, سلامت رہے دوستانہ ہمارا. نہ بچھڑیں گے مر کے بھی ہم دوستو, نہ بچھڑیں گے مر کے بھی ہم دوستو, ہمیں دوستی کی قسم دوستو. پتا کوئی پوچھے تو کہتے ہیں ہم کہ ایک دوجے کے دل میں رہتے ہیں ہم, رہتے ہیں ہم. نہیں اور کوئی ٹھکانہ ہمارا, سلامت رہے دوستانہ ہمارا, سلامت رہے دوستانہ ہمارا. بنے چاہے دشمن زمانہ ہمارا, سلامت رہے دوستانہ ہمارا. ویری گڈ. ویری گڈ, تھینک یو سو ویری مچ. اسی چیز کی تو آپ نے میری تعریف کی, یہ اور آپ لڑکے سے ہمارے ہاتھ بھی ملایا, دوستی کا ہاتھ بھی ملا لیا. تو اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اب آپ باہر جا سکتے ہیں, مل معاف سکتے کیا, ہیں. معاف کر دیا. تم بھی کیا یاد کرو.